Hello students, good morning. After studying last class, you must know these questions about verb. What is verb? Tell me the definition of verb. If you have studied it, my dear, you can tell it without of any problem. And after that, you have to tell the classification of verb. How many classifications are there of verb? You should know. If you know, you should give the answer. And you must know how to make verb fifth present singular, how to make verb fourth present participle. If you know these questions answer, it's mean you have studied the last class, you have understood the last class. If you do not know these questions answer, it's mean you need to study it very much. Without studying all these things, you cannot learn English, my dear students, well. To learn English well, you have to make your base very strong. Now come to the point. As I told you in last class, abuse is verb first, verb second is abused, verb third is abused, verb fourth is abusing, verb fifth is abuses. My dear students, I have underlined here ed, and ing. Why I have underlined them? You have to understand it. We see second verb complete, completed, completed, completing, and completes. Why I have underlined here ed as well as ing? My dear students, when we pronunciate ed, so it is not pronunciated as ed in every verb. It has three different sounds. Ed sounds id, to, and d sound. It gives three sounds: id, to, t sound, and d sound. I will tell you in further class, but before that I would like to tell you about ing. We won't study it abusing, completing. We would study it abusing. G will not be pronunciated 100%. You will speak it up only 20%. Abusing, completing, not completing, abusing. We are not to study like that. Fine. Now we are working on ed sound. There are three sounds: id, to, and d sound. See, when ed gives id sound, when verb ends on d, t. When any verb ends on d or t, मतलब जब कोई भी वर्ब या तो d पर एंड हो या t पर एंड हो, ed लगने से पहले जब कोई भी वर्ब या तो d पर एंड हो या t पर एंड हो, तो id साउंड आता है। जैसे कि डिसाइड, अब डिसाइड है, मैंने कहा डिसाइडेड, देखो ईडी लगा दिया तो डी पर एंड है ना, वो ईडी लगाने से पहले तो डी आ रहा है ना, डिसाइडेड। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? डिसाइडेड, इड के साउंड आया ना, डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइडिंग, डिसाइडिंग ना पढ़ के डिसाइडिंग, डिसाइड्स, 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 डी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। फिर हम आते हैं डेकोरेट। डेकोरेट पे देखिए, डेकोरेट मेन वर्ब है, उसमें हम जब ईडी लगाएंगे तो ये ट पे एंड होगा, टी पे एंड होगा, तो इसका भी साउंड क्या आएगा? डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेटिंग और डेकोरेट्स। यानी जब हम ईडी लगा देते हैं वर्ब में, दोबारा से समझें, चीज़ को क्लियर करें। जब हम वर्ब में, जिस वर्ब में हम ईडी लगाएं, ईडी लगाने के बाद उस वर्ब में उस वर्ब ईडी लगाने के बाद वो वर्ब का जो पहला ई से पहले का जो लेटर हो वो डी हो या टी हो। ईडी लगाने के बाद ई से पहले का जो लेटर हो या तो डी हो या टी हो। इसको समझ लें क्लियरली। अगर इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो यू शुड राइट इट डाउन इन हिंदी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर you have to write down 50 verbs, my dear, of this 50 verbs you will write down
which will end on D और T। जो यहाँ पे DE या T ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जो वर्ब्स DE या TE पे एंड होता है उन वर्ब्स में वो 50 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं जिसमें ED लगाने पर जिसका साउंड इड आता है। ये आपको समझ में आ चुका है, तो इसके 50 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। देन वो कहता है ED साउंड्स T। ED का साउंड T कब आता है? वर्ब एंड्स ऑन CH, GH, P, SH, S और K। जब कोई भी वर्ब इन लेटर्स, इन वर्ड्स पे एंड होती है और उसमें हम जब ED लगा देते हैं तो उसका साउंड ट आता है, T साउंड आता है। जैसे कि टच, CH पे एंड है, इसमें हम ED लगाएंगे तो हम इसको ED का जो साउंड देंगे वो देंगे टच्ड, ना कि टच्ड। टच्ड, टच्ड, टचिंग, टचेज। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स। किस्ड, किसका किस्ड, किस्ड, किसिंग, किसेस। इसके भी माय डियर स्टूडेंट्स आपको 50 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। 50 एग्जाम्पल्स कैसे लिखने हैं? जो वर्ब्स CH पे, GH पे, P पे, S पे, SH पे या K पर एंड हो रही हैं उनमें ED का, और उनकी फॉर्म भी तीनों पांचों के पांचों फॉर्म भी लिखनी है आपको। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और पांचों फॉर्म्स को आप पढ़ के भी देखेंगे, बोल के भी देखेंगे, लिख के भी देखेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। इसकी भी आपने 50 वर्ब्स लिखनी है और उसका एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं 50 वर्ब्स को, और उसको बोल आप प्रोनाउंसिएट भी करके देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ED साउंड डो। ED का D का साउंड कब आता है? वर्ब एंड्स ऑन, जब कोई भी वर्ब G पे एंड हो, J पे एंड हो, B पे एंड हो, V पे एंड हो, या Z पे एंड हो, या DH पे एंड हो, या V पे एंड हो, या L पे एंड हो, M पे एंड हो, N पे एंड हो, Y पे। देखो बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे भी नहीं आपको लर्न नहीं हो सकते, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हग जैसे एक वर्ड है और एंड है G पर, जब इसमें हम ED लगाते हैं, एक तो जो हम देखो इसका इसको पढ़ेंगे, जब हम इसमें ED लगाएंगे तो डबल हो जाएगा, क्योंकि G से पहले यहाँ पे वोवल आ रहा है। किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले जब वोवल आता है, केवल जो वर्ब उस पर एंड हो कॉन्सोनेंट पर, उससे पहले सिंगल वोवल आ जाए तो हम सेकंड फॉर्म करते टाइम उसमें क्या लगा देते हैं? डबल कर देते हैं लास्ट कॉन्सोनेंट को। यहाँ पे देखिए हग, हग्ड, इसको हग्ड बोलेंगे, ना कि हग्ड। ना T का साउंड आएगा, ना इड का साउंड आएगा, D का साउंड आएगा, हग्ड, हग्ड। फिर है एनकरेज, एनकरेज्ड, एनकरेज्ड। लव, लव्ड, लव्ड, ना कि लव्ड। लव्ड भी नहीं है, लव्ड भी नहीं है, लव्ड। प्ले, प्लेड, प्लेड। स्टे, स्टेड, स्टेड। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको 50 वर्ब्स इसके लिखने हैं। मतलब 50 वर्ब्स इसके D साउंड के, 50 वर्ब्स T साउंड के, 50 वर्ब्स EID यानी कि इड साउंड के। टोटल 150 वर्ब्स आपको लिखनी है डियर स्टूडेंट्स, और उनको बार बार प्रोनाउंसिएट करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन लर्न देम एज वेल। गुड बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।